محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين إمام المشرقين والمغربين سد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کلام میں تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس کے قبض قدرت میں ہر ایک شے کی ذات ہے. وہ پروردگار کی جس نے بہتے ہوئے سمندر پہ خاکی فرش بچھایا. وہ پروردگار کی جس نے آسمان کا بلند و بالا شامیانہ لگایا. وہ پروردگار کی جس نے چڑیوں کو چہکایا، جس نے پھولوں کو مہکایا. وہ پروردگار کی جس نے چاند کو روشنی دی، سورج کو اجالا دیا. وہی پروردگار کی جس نے ہواؤں کو ٹھنڈک دی، دریاؤں کو روانی دی، زلیخا کو جوانی دی. وہی پروردگار کی جس نے آدم کو علم دیا، نوح کو تقویٰ دیا، ابراہیم کو خلت دی، موسیٰ کو ہیبت دی، عیسیٰ کو زہد دیا. وہی پروردگار کی جس نے ہمارے آخری نبی کو کمال دیا، جنت کو نور دیا، آدمی کو شعور دیا. وہی پروردگار کی جس نے جنت کو نور دیا، آدمی کو شعور دیا، یعقوب کو صبر دیا، یوسف کو جمال دیا. وہ پروردگار عالم، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ علیم، وہ کریم، وہ خوددار، وہ جبار، وہ حنان، وہ منان، وہ دیان، وہ برہان. وہ پروردگار، وہ اول و اولین، وہ آخر و آخرین. وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہ تھا، اور ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی نہ ہوگا. وہ پروردگار کی اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. وہی پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ چیز کہ جو ہماری زندگی میں کم ہے، یا یہ کہ وہ ہماری زندگی میں جس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہے، وہ اہل بیت کی معرفت ہے. اب اہل بیت کی معرفت کیا؟ یعنی کہ ہم سنتے ہیں کہ اہل بیت کی معرفت، تو معرفت کیا؟ معرفت کے آسان سے معنی پہچان. مثلاً عام زندگی میں اگر ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں، لیکن جب ہم ان ہستیوں کے بارے میں کہتے ہیں تو ہم معرفت ورڈ کا یوز کرتے ہیں. کسی بھی چیز کی پہچان بہت ہی ضروری ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو جب تک پہچانو گے نہیں تب تک اس پر عمل کیسے کرو گے. اب کیوں تاریخ میں تھوڑی سی ہستیاں
थे। अल्लामा अमीनी ने उसी पर्चे को उल्टा किया और बिस्मिल्लाह लिखा और कहा कि जाओ, मौला ने तुम्हें बेटा दिया। यहाँ नामा दिया, वो कासिद उसकी तरफ चला। अल्लामा अमीनी ने अबा ओढ़ी और हरम की ओर चले और ज़ियारत जामिलाए कबीरा की तिलावत की और सिर्फ इतना कहा मौला से कि मौला एक हवाला भेजा है, इज्जत रख लीजिएगा। अब दूसरे दिन डॉक्टर ने देखा तो वो हैरान रह गए। सरवार किसी ने सवाल किया, सहाबी ने, या अमीरुल मोमिनीन, जरा एक लफ्ज में, एक जुमले में जनाब सैयदा को एक जुमले में हमारे लिए बयान फरमाए। तो जनाब अमीर ने कहा कि जन्नत से एक फूल आया था तो जो वापस जन्नत में चला गया, लेकिन उसकी खुशबू अब तक दुनिया में बाकी है। जिस सैयदा की सिर्फ दुनिया में 18 बरस की जिंदगी में इतनी खुशबू पैदा कर दी कि आज अगर ईमान है तो सैयदा के सदके में, नूर है तो सैयदा के सदके में, ये मजलिसें हैं तो सैयदा के सदके में। बीबी ज़हरा के पास 3 हवाले हैं। नबी की बेटी है, अली की ज़ौजा है और हसनैन की अम्मा है। बाप नबियों का सरदार, शोहर वलियों का सरदार, बेटे जन्नत के सरदार। एक दिन शहजादी ने पूछा, बाबा आप साहिबे शरीयत है, आज मैं आपसे सवाल करती हूँ, उसका आप जवाब दीजिएगा। अब कहा, बाबा क्या आपकी शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि एक बाप अपनी बेटी से इजाज़त लेकर उसके घर में दाखिल हो? रसूल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं फातिमा, शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। बाप है, बगैर इजाज़त बेटी के घर में दाखिल हो सकता है। कहा, बाबा आप फिर मुझसे क्यों इजाज़त तलब करते हैं? एक मर्तबा मुस्कुराकर, ये अल्लामा ज़ैदी के जुमले हैं, मुस्कुराकर रसूल ने कहा कि किसी बाप पर यह वाजिब नहीं है कि वो बेटी से इजाज़त लेकर दाखिल हो, लेकिन हर रसूल पर यह वाजिब है कि वो बतूल से पूछकर दाखिल हो, यानी कि वो बतूल से पूछकर इजाज़त लेकर ही आए। और जब तक इजाज़त ना हो तब तक मुझ जैसा मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी भी दाखिल नहीं हो सकता। बीवी के फज़ाइल को कोई बयान नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं कि बीवी के बहुत से नाम थे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि हमारे नबी ने बीबी फातिमा ज़हरा के इतने सारे नाम क्यों रखे? इंशाअल्लाह इस अय्याम में मैं बीबी के अलग अलग नाम रखने का मतलब समझाऊंगी। यूनुस बिन ज़बियान ने हज़रत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक से रिवायत की। इमाम जाफर सादिक से रिवायत की कि इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जनाब फातिमा ज़हरा के 9 नेम्स पसंद किए हैं, यानी कि फातिमा, सिद्दीका, मुबारका, ताहिरा, ज़किया, राज़िया, मर्ज़िया, मुहद्दिसा और ज़हरा। फातिमा नाम का मतलब होता है कि वो कि जिसे सबसे अलग रखने में आया हो। एक वाक़या मिलता है, सुकूनी कहता है कि जब मैं इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ तब मैं बेचैन और गमगीन था। इमाम ने फरमाया कि क्या बात है सुकूनी? अब सुकूनी ने फरमाया कि मेरे घर बेटी की विलादत हुई है। इमाम ने फरमाया, ए सुकूनी, तुमको किस बात की चिंता है? बेटी के रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर है, वो तुम्हारे हिस्से की रोजी नहीं पाएगी। सुकूनी कहता है, खुदा की कसम, ये सुनकर मेरा गम और गुस्सा दोनों शांत हो गया। बाद में इमाम ने फरमाया कि उसका नाम क्या रखा है? उसने कहा, फातिमा। फिर इमाम ने अपने मुबारक हाथ सर पर फेरा और कहा कि जब तुमने अपने बेटी का नाम फातिमा रखा है तो फिर ये ध्यान रखना कि कभी उसको अच्छा बुरा मत कहना। सरकार कुरान में जनाब फातिमा ज़हरा की फजीलत के बारे में मिलता है कि अबू सईद कहते हैं कि आयत तस्हीर सिर्फ 5 लोगों की शान में नाज़िल हुई है। रसूल अकरम के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जनाब फातिमा ज़हरा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन
खतरनाक थे। तब रसूल खुदा उनसे मिलने आए और साथ में सहाबी भी तशरीफ लाए। तब रसूल खुदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बच्चों की शिफा के लिए नजर मारने की सलाह दी। तब हज़रत अली ने फरमाया कि मैं खुदा से अहद करता हूँ कि अगर बच्चे तंदुरुस्त हो जाएंगे तो मैं शुक्र के लिए 3 दिन रोज़ा रखूँगा। जनाब फातिमा ज़हरा ने भी नज़र मानी और बीबी फिज़ा ने भी नज़र मानी। जब दोनों बच्चों को शिफा मिल गई तब घर के लोगों ने रोज़ा रखना शुरू किया ताकि खुदा का अहद पूरा हो सके और नजर अदा हो सके, लेकिन इफ्तार के लिए घर में कुछ नहीं था। इसीलिए मौला कायनात ने शमून यहूदी के पास से जौ कर्ज की तरह लिया। अब पहले दिन खातूने जन्नत ने जौ की 5 रोटियां तैयार की। जब मौला मगरिब की नमाज के बाद इफ्तार के लिए घर आए तब एक फकीर ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी, मैं भूखा हूँ। घर के लोगों ने अपनी अपनी रोटी फकीर को दे दी और सिर्फ पानी से रोज़ा खोला। अब दूसरे दिन अगले दिन की तरह जनाब फातिमा ज़हरा ने 5 रोटियां तैयार की। मौला इफ्तार का इरादा करते हैं तब एक यतीम जनाब ज़हरा के घर के पास आकर आवाज़ देता है कि मैं भूखा हूँ। घर के लोगों ने अगले दिन की तरह अपनी रोटी यतीम को दे दी और पानी से इफ्तार किया। अब तीसरे दिन इफ्तार के टाइम दोनों दिन की तरह एक कैदी जनाब सैयदा के घर के पास आकर कहने लगा कि मैं भूखा हूँ। उस दिन भी अपनी रोटी कैदी को दे दी और उस दिन भी पानी से रोज़ा खोला। अब चौथे दिन जनाब अमीरुल मोमिनीन अपने दोनों बच्चों को नबी करीम की खिदमत में लेकर आए। नबी ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा कहाँ है? अब मौला ने फरमाया कि बीबी इबादत में मशगूल है। पैगंबर खड़े हो गए और मेहराब इबादत में पहुँचे। तब देखा कि बीबी की आंखों में भूख की वजह से कमजोरी दिख रही है। तब सूरह दहर की आयत नाज़िल हुई। शायर इसके खूब कहा है, चश्मा नबी के नूर को कहते हैं फातिमा, अल्लाह के गुरूर को कहते हैं फातिमा। चश्मा नबी के नूर को कहते हैं फातिमा, अल्लाह के गुरूर को कहते हैं फातिमा। रहमतों के ज़हूर को कहते हैं फातिमा, रहमतों के ज़हूर को कहते हैं फातिमा। ये साथ नुज़ूल आयत तहीर बन गई, ये साथ नुज़ूल आयत तहीर बन गई। ज़हरा अव्वल जहां में मिसाल बन गई, ज़हरा अव्वल जहान में मिसाल बन गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम सबका मौला अली अली, हम सबका आका अली अली, जरा जोर से बोलो अली अली, जरा दिल से बोलो अली अली, एक अच्छा नारा अली अली, एक सच्चा नारा। अली अली, जान से पूछा अली अली, सूरज भी बोला, अली अली, किश्ती भी बोली, अली अली, हंसने का बाबा, अली अली, अकबर का दादा, अली अली, असगर का दादा, अली अली, कौन का नाना, अली अली, मोहम्मद का नाना, अली अली, नारे हैदरी या हैदरी, हैदरी, नारे सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मर्तबा एक औरत बीबी के दरवाजे आई। तब बीबी की अभी शादी हुई थी। वो औरत दरवाजे पर आई और कहने लगी कि ऐ शहजादी कौनैन, मेरे पास लिबास नहीं है, अगर लिबास का इंतज़ाम हो जाए तो अच्छा होगा। बीबी तुरंत अपने कमरे में गए और अपनी शादी का जोड़ा उस औरत को दे दिया। अगर बीबी की जगह हम होते तो शायद ऐसा ना करते। हम अक्सर हमारी पुरानी चीज़ें या फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वही लेते हैं। मगर क्या कहना उस ज़ात का, अपनी शादी का जोड़ा दे दिया, वो भी खुशी खुशी। रसूल अकरम ये मंजर देख रहे थे। नबी ने फरमाया कि ए बेटी फातिमा, ये क्या कर रही हो? अपनी शादी का जोड़ा तुम औरत को दे रही हो। तब बीबी ने फरमाया, बाबा आपने ही सिखाया है कि अगर किसी को भी हमें चीज़ देनी होती है तो हम अपनी पसंद की ही दी जाती है सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस साधारण गिरामी मैंने खत्म किया।
अफसोस कि इतने सखे और करीम मौला के घर वालों के साथ दुनिया ने कैसा सलूक किया। आपने फरमाया सुब्बत अलैया मसाइबुल्लवन्नहा सुब्बत अलैया मसीरन लयालिया, यानी कि जो मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी अगर वो दिन में पड़ती तो रात में बदल जाती, और अगर रात में पड़ती तो दिन में तब्दील हो जाती। ये सब मुसीबतें बीबी ज़हरा पर भी पड़ी है। अब्बा जान के गम में बीबी की हालत बहुत खराब हो गई थी, उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था। हुजूर के हाथ मुबारक पर दर्द के कारण पट्टा बंधा हुआ था। बाबा आप कहाँ चले गए? मस्जिद वीरान हो गई, मदीना खाली हो गया, ऐसी फरियाद करते और रोते रहते थे। यहाँ तक कि अहले मदीना ने जनाब अमीर से शिकायत की, या अली बीबी के रोने से हमें तकलीफ होती है, यानी कि बीबी की आवाज़ हमें तकलीफ देती है, हमारी कानों में तकलीफ होती है, आप बीबी को समझाओ। और आगे फरमाते हैं कि बीबी को कहो कि दिन में एक टाइम फिक्स कर ले, बीबी को कहो कि दिन में एक टाइम नहीं रोया करे, मतलब कि रोने के लिए भी वक्त फिक्स कर लो। अफसोस जनाब रसूल खुदा के बाद बीबी को ठीक से रोने भी ना दिया। जब मदीने वालों का पैगाम जनाब अमीर ने जनाब सैयदा को दिया तब बीबी ने कहा, ऐ अबुल हसन उन लोगों से कह दो फातिमा थोड़े दिन की मेहमान है। बाद में जनाब अमीर ने कब्रिस्तान में एक जगह मुकर्रर की कि जहाँ बीबी अपने दोनों फर्जंदों को लेकर जाते और पूरा दिन अपने बाबा की जुदाई में रोते थे। जब से जनाब रसूल खुदा की वफात हुई तब से बिलाल ने अज़ान देना छोड़ दिया। एक दिन बीबी को अपने बाबा की मोहब्बत की आवाज़ अज़ान सुन गया। बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बीबी ने ये सुनकर जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। लोगों ने ये समझा कि बीबी का इंतकाल हो गया है। बिलाल से किसी ने कहा कि ऐ बिलाल अज़ान बंद कर दो, रसूल की बेटी का इंतकाल हो गया है। अब थोड़ी देर बाद बीबी होश में आई और बिलाल से कहा अज़ान तमाम करो। बिलाल ने कहा शहजादी मुझे माफ करना, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप गुजर न जाओ। जब बीबी की आखिरी रात आई बीबी को महसूस होने लगा। सुबह से ही आप हसनैन के नहलाने लगे, खिलाने लगे, सब काम करने लगे। मौला कायनात हाजिर हुए, बीबी वसीयत करने लगे। बीबी ने फरमाया या अबुल हसन मैं सालों से आपके साथ रहती हूँ, अगर मुझसे कोई खता हुई हो तो मुझे माफ करना। जनाब अमीर ने कहा ऐ बिन्ते रसूल आप तो मासूमा हो, भला आपसे क्या पता हो सकती है। बीबी ने दूसरी वसीयत की कि मेरे इंतकाल के बाद घर के काम के लिए औरत की जरूरत होगी। मेरे जाने के बाद आप मेरे बहन और मामा से शादी करना ताकि मेरे बच्चे खुश रहे। अब बीबी फरमाती है कि या अली आप भी मुझे गुस्सा पकड़ पहनाना और आप भी मेरे जनाजे पर अज़ान पढ़ाना। आगे बीबी ने फरमाया कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना ताकि किसी नामहरम की नजर ना पड़े। अमीर